آپ سب کی تعلیم میں خدا کے خالق کو اپنے دعوت دیں گے. Praise the Lord! 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 شکریہ تشریف رکھیں. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. ادھر کافی جگہ ہے, تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا, کھلے ہو کے بیٹھو. آج کافی دنوں کے بعد مجھے موقع ملا میسیج دینے کا. کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہی ہے نا, پورے روزے ایک میسیج نہیں میں دے سکتا. سنڈے کا میسیج جیسا کہ آپ جانتے وہ مخصوص میسیج ہے میرے, اس میں ہم نے پیدائش کی کتاب کو شروع کیا, آپ خود خروج میں آ چکے ہیں. لیکن یہ بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے سنوں. سو 3 پاسٹر صاحبان یہاں پہ آئے, میں ان کا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ آئے ہماری کلیسیا میں. انہیں خدا کا زندہ کلام, اور یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے. اس کے بعد میری باری ہے. ہاللیلویا. آئیں آج روزوں کے تعلق سے تھوڑا سا سیکھیں گے, کیونکہ اگلے بدھ میں کوشش کروں گا کہ میرا ہی میسج ہو. اب ایسٹر تک ہم شاید کسی بھی پاسٹر کو موقع نہیں دیں گے. کوشش کریں گے کہ میں خود ہی, کیونکہ آپ کا تجربہ بخوبی ہو چکا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں ہم سیکھیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چرچ میں کچھ سکھائیں. آئیں کچھ روزے ہیں بائبل مقدس میں جن کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے بائبل مقدس میں اگر روزوں کو دیکھتے ہیں تو ہر روزہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد سے رکھا گیا, اور جیسے ہی روزہ رکھا جاتا تھا اسی وقت خدا جواب بھی دیتا تھا. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں, کبھی اپنی اپنی زندگی پر غور کریں گے. آئیں ذرا روزے دیکھتے ہیں. پہلا روزہ خداوند نے جو روزہ بتایا وہ شام سے شام تک تھا. شام سے شام تک یہ روزے ہم عام رکھتے ہیں, لیکن روزے کا مقصد جو ہے یہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا. بائبل مقدس میں 50 بار روزے کا ذکر ملتا ہے, جس میں 32 بار پرانے عہد نامے میں اور 18 بار جو ہے یہ نئے عہد نامے میں. زیادہ روزے جو رکھے گئے ہیں یہ پرانے عہد نامے میں نظر آتے ہیں, لیکن نئے عہد نامے میں بھی روزے آئے. خدا یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا وہ روزہ تو نہیں ہم کہہ سکتے, وہ تو فاقہ تھا, لیکن ہم نے اس کو روزوں میں چینج کیا. جس کا روزہ ہم رکھتے ہیں آج, کسی سے بھی پوچھ لیں روزہ رکھتے ہیں تو کہیں گے جی خدا یسوع مسیح نے روزہ رکھا. خدا یسوع مسیح نے روزہ رکھا, اس کا بھی کوئی مقصد تھا. لیکن ہم آج جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھیں, روزہ رکھیں, مقصد رکھیں. ابھی تھوڑے دن پہلے
पहले लगभग संडे को काफी अरसा के बाद मैं किसी अपने अजीज के घर में गया, तो वहां बात हो रही थी बरकत की, ब्लेसिंग की। तो जिस घर में आप बैठे थे तो उन्होंने किसी की बात की कि उन्होंने ये जिक्र किया आपका। तो कहती, मैंने कहा कि मैं बड़े अरसे से उनको जानती हूं, वो बड़ी रोजे रखते हैं। ये रोजों की बरकत है कि आज खुदा हमें इस्तेमाल करता है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, हमने एक फादर के घर में इबादत शुरू की। जब हमने उनके घर में इबादत शुरू की, मुझे नहीं पता था कि ये फादर का घर है। जब मेरा उसका बड़ा भाई मुझे लेके गया, तो जब मैं उनके घर में दाखिल हुआ, जब हम कमरे में जाके बैठे, तो मैंने कहा, क्योंकि वो सारा कुछ उन्होंने रखा था, स्टैचू वगैरह, तो मैंने कहा आप कैथलिक से हैं? तो उसने मुझे कहा, जी कैथलिक से तो है, हमारा एक भाई फादर भी बन रहा है। मैं कहा अच्छा। तो मैं क्या, फिर तो मुश्किल काम है कि आपके घर में इबादत हो। उसने कहा कि हमारी पूरी फैमिली मुतफिक है कि आप हमारे घर में इबादत करें। यहां पे भी आते रहे वो, फादर साहब भी आए यहां पे। सो जब इबादत का आगाज किया गया, तो उन्होंने अपने भाई से पूछा जो फादर बन रहा था कि आपका क्या ख्याल है। उसने कहा, जी मैं पहले सारा कुछ सर्च करूंगा। उन्होंने हमारी आईडी वगैरह चेक की, यूट्यूब चेक की, फेसबुक चेक की। दोबारा जब हम उनके घर में इबादत करवाने गए बहाना, तो उसने मेरे साथ एक सवाल किया। कहता, भाई साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैं क्या, करें? एक नहीं, जितने मर्जी करें। उन्होंने कहा, आप रोजे रखते हैं? मैं कहा जी। उन्होंने कहा, बस यही मेरा सवाल है। मैं कहा, इसका मकसद? उसने कहा, जितने की भी खादम मैंने देखे हैं फेसबुक पर, जिनके पास खुदा ने जिनको ब्लेसिंग दे रखी है, जिनको मैं जानता हूं, वो रोजे बहुत रखते हैं। जबकि खुदा, जब आप रोजा रखते हैं नेक नियति से, तो खुदा आपकी वो हर दुआ सुनता है जो आप खुदा से करते हैं। आज जरूरत है कि हम भी जब रोजा रखें तो उनमें कोई ना कोई मकसद रखें। मुझे खुदा का शुक्र है कि 13वां साल शुरू हो गया रोजे रखते हुए। एक अरसा है मेरी जिंदगी का। मेरी टीम जानती है कि रोजे वाले दिन क्रिसमस भी आ जाए तो मैं रोजा नहीं छोड़ता। कोई त्योहार आ जाए, कुछ भी हो, मैं अपने रोजे को कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने खुदा से एक वादा किया हुआ है कि खुदावन तू मेरी इस बरकत को बढ़ा, तू उस मेरी बरकत को और बढ़ा, इस बरकत को टीम में ट्रांसफर कर। मेरी जो टीम है कल को ये भी खुदावन यही काम करे, इन सभी यही मौजूद हो जो खुदावन तू मुझसे लेता है। इस मकसद से मैं क्या करता हूं, रोजा रखता हूं। और बहुत सारी कलीसिया के लोग भी मेरे साथ रोजा रखते हैं। इवन कि एक तो गैर मसीही लोग भी हैं जो रोजा रखते हैं। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं कि खुदावन जब वो रोजा रखते हैं, खुदावन उनको हिम्मत और ताकत दे। आए थोड़े से रोजे देखते हैं जरा। आस्तर का रोजा देखते हैं। आस्तर का रोजा 3 दिन का था। आस्तर की किताब 4 बाब 15 ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। 536 नंबर पेज है। अब ये जितने रोजे हम देखने लगे हैं, इनकी दुआओं का जवाब, इनके रोजे का जवाब खुदा देता था, उसी वक्त देता था जैसे ही रोजा रखते थे। आज हम रोजे रखते हैं। आज भी मुझे किसी ने कहा कि मैंने रोजा भी रखा फलां के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। होगा कैसे? कैसे होगा? क्या आज हम जब रोजा रखते हैं तो वो ठीक है? नहीं। हम रोजे में हर वो गलत काम कर गुजरते हैं जो नहीं करने वाला। हम जब रोजा रखते हैं तो हम झूठ भी बोल जाते हैं, हम गालियां भी निकाल लेते हैं,
हम लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं, हमारे दिल में हसरत से भरे हुए हैं, लेकिन रखते हम क्या है? रोजा। तो फिर चाहते हैं कि खुदा शाम को जवाब भी दे दे। सुबह रखा है या शाम को रखा है, तो कल खुदा मेरा रोजा खुलने से पहले पहले खुदा दे तो क्या करना? जवाब देना। निकाला किसी ने? आस्तर की किताब 536 नंबर पेज है, 4 बाब 5-15 ऐसे पढ़ेंगे। 3 दिन का यह रोजा है। हाँ जी, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जाओ और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं, जितने यहूदी मौजूद हैं, क्योंकि उस वक्त का जो बादशाह था उसने ऐलान कर रखा था कि तमाम यहूदियों को क्या कर दिया जाए? मलिया मेट कर दिया जाए, मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, इनको सलीब पर चढ़ा दिया जाए, इनको खत्म कर दे, इनकी नस्ल को खत्म कर दिया जाए। मलका आसर को जब पता चलता है, वो खुद यहूदी थी, तो वो कहती मर्दकी को जाके क्या बताओ कि हुक्म करो कि बाहर आप लोग रोजा रखो, मैं अंदर रोजा रखूंगी। पढ़ो जरा। कि जाओ और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं, हाँ जी, उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो। तुम मेरे लिए क्या करो? रोजा रखो। क्या आज हम जब रोजा रखते हैं उसमें क्या मकसद होता है? ये मकसद का रोजा है, तुम मेरे लिए रोजा रखो, क्योंकि मैं रोजा रखने वाली हूं और मैं दलेरी के साथ बादशाह के सामने जाने के लिए तैयार हूं। मैं जाऊंगी बादशाह के सामने, मैं बात करूंगी बादशाह से कि खुदा बादशाह तो मेरी कौम पर क्या करे? रहम कर, लेकिन तुम मेरे लिए क्या करो? रोजा रखो। और मैं भी रोजा रखूंगी और मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी। पढ़ेगी आगे जरा। और 3 रोज दिन और रात ना कुछ खाना, ना दिन पीना। रात 3 दिन और 3 रात क्या है? ना कुछ खाना ना कुछ पीना। आज लोगों का ख्याल है, अभी कल परसों मेरे साथ किसी ने बात की कि पास साहब क्या रोजे में पानी पी लेंगे? मैं क्या नहीं। रोजा क्या है? अगर हम पानी पी ले। मजे की बात बताता हूं। हम एक बार जब मैं बिल्कुल यंग था, मैं सियासत में आ गया, मुझे भी बड़ा शौक था। हमने एक जुलूस निकाला, असेंबली हॉल के सामने बैठ गए, भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल की थी। अब रात जब होती थी शाम, तो सारा दिन भूखे प्यासे बाहर जाके खा खू भी लेते थे, लेकिन रात को क्या करते थे? चद्दर ली होती थी, मच्छर बड़ा लड़ता है, ऊपर ले लेनी तो जो जूस फड़ाना फड़ पी ले। अंदर ये हमारी भूख हड़ताल थी। लेकिन रोजा इससे बिल्कुल फर्क है। रोजे में ना तो कुछ आप खा सकते हैं ना आप पी सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि रोजा रखना है तो गालियों का रोजा रखने, झूठ बोलने का रोजा रखने। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यही आपका रोजा है। आप गाली ना निकालें, ये आपका रोजा है। रोजा रखना तो इस तरीके का रखें, कोई मकसद रखें। रोजा रखना है तो जब रोजा रखते हैं तो उसमें मकसद रखें, और सारा दिन फिर उस दिन ना तो झूठ बोलें ना गाली निकालें, कोई गलत काम ना करें। फिर खुदा रोजे का जवाब देता है। लेकिन काम वही करते रहना है तो फिर खुदा से गिला करना है कि खुदा मेरे रोजे का जवाब क्यों नहीं देता। लिखा है कि तुम 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाना और ना पीना। पीने की भी बात है। एक बार मेरे पास कोई गैर मसीही बहन बैठी थी, तो बात हो रही थी रोजे की, तो कहती भाई साहब आपका रोजा इतना सख्त नहीं। भाई आपका रोजा इतना सख्त। मैं क्यों? मैं क्या हमारा रोजा आपसे सख्त है? कहती नहीं, आप चूल्हे की बनी हुई खाते नहीं। मैं क्या, आपको किसने ये गलतफहमी में डाल दिया? हमारे ही लोग गलतफहमी पैदा करते हैं। कहती हमारे घर में कुछ लड़के काम कर रहे पेट का, तो कह रही हमने उन्हें कहा कि खाना खा लो। जब हमने दोपहर को खाना दिया तो कहते नहीं खाना। तो कह रही थोड़ी देर के बाद जब मैं ऊपर गई तो चाट खा रहे थे बैठ के। तो कह रही मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी 4 चूड़ ही खा सकने, ये हमारा रोजा है। हम अपने आप को खुद ही बदनाम करते हैं। हमें रोजे का मकसद ही पता नहीं है, हमें पता ही नहीं कि रोजा क्या है, लेकिन हम खुद ही अपनी बातों में फंस रहे, अपनी बातें करके खुद ही क्या होते हैं? जलील होते हैं। लिखा है कि तुम 3 दिन और 3 रात तक कुछ ना खाना। कितने आगे? मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह
मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी और फिर मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। जो आइन के खिलाफ है। तो क्या बादशाह के सामने मलका भी नहीं जा सकती थी? इसलिए वो कहती ये आइन के खिलाफ है, लेकिन तुम मेरे लिए रोजा रखना, मैं भी रोजा रखूंगी। 3 दिन तक वो रोजे में रहे और तीसरे दिन फिर वो बादशाह के हुजूर जाती है। अब फिर क्या वापस दे रहा है इसको? और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। हाँ जी। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और हाँ जी। आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। जी। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर वो शाहाना लिबास पहनती है। शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई। हाँ जी। और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबिल के दरवाजा पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी। वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी रोजे के वसीला से। वैसे नहीं मकबूल ठहरी। वैसे तो आर्डर था कि बगैर कोई पूछे, बगैर कोई इजाजत लेके लिए बगैर बादशाह के सामने होगा तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन ये रोजे की ताकत थी, लोगों की दुआओं का नतीजा था कि जब वो सामने जाती है तो बादशाह उसको देखते ही मकबूल ठहराता है। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी रोजा रखें तो खुदा के हाथ सामने मकबूल हो, वो हमें अजर दे। दुनिया ने कोई अजर नहीं देना, ना हम किसी से अजर मांगते हैं, बल्कि अजर पाना है तो खुदा से पाना है। इसलिए आज जो बादशाह का बादशाह, जो शहनशाह का शहनशाह है, जब हम रोजा रखें तो उसकी नजर में हमें मकबूल होने की जरूरत है। रोजा रखना है तो इस तरीके से रोजा रखें ताकि खुदा की नजर में हम मकबूल ठहर सके। आए समूएल 2 बाब उसकी 12-16 को पढ़ते हैं जरा। 342 नंबर पेज है। दाऊद का रोजा, ये 7 दिन का रोजा है। जब उसका बेटा बीमार हो जाता है तो अपने बेटे को पास बैठा रहता है, रोजा रखता है कि खुदावंद इसको जिंदगी दे, खुदावंद इसको जिंदगी दे। आखिरकार वो लोग उसको मना करते हैं, आके उसको समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन 7वें दिन जब वो बच्चा मर जाता है तो वो उठता है, मुंह हाथ धोता है और रोजा खोल लेता है। रोजा ये भी है। क्या आज हमारी दुआ का जवाब गलत आ जाए, रोजा रखे तो कोई गलत जवाब आ जाए तो हम ऐसा करते हैं? हम तो खुदा से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, हम तो खुदा से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। बड़े रोजे रखे, बड़ा कुछ किया, खुदा ने सारी सुनी ही नहीं। क्या क्या ख्याल है? खुदा के अपने प्लान हैं। यहाँ पे देखते हैं कि उसने 7 दिन का रोजा रखा अपने बेटे के लिए, जब तक वो जिंदा रहा। लेकिन 7वें दिन जब वो मर गया तो उसने अपने रोजे को खोल दिया। कि पढ़ दे 342 नंबर पेज है। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूस जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वह बहुत ही कुड़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। तो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके क्या किया? उसने रोजा खोल दिया। हाँ जी। और पोशाक बदली और खुदा के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो उसे अपने घर लाया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। उसके आगे रोटी रखी गई और उसने खाई। ये भी है रोजा, ये भी रोजा है जिसका जवाब शायद उल्टा आया, लेकिन ये खुदा की मर्जी थी। लेकिन उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया। आज हम भी जब रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं तो खुदा गिले शिकवा करना बंद करें। फिर खरोज 3 बाब और उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे। ये बैठी देना 3 बाब की 28 है। यहां मूसा का रोजा है जो 40 दिन चला।
हाँ जी, 3:28। चौतीस, सॉरी 34 बाब 28 है। यहां मूसा खुदा के पास जाता है, खुदा के पहाड़ पे जाता है 10 हुक्म लेने के लिए, और वो 40 दिन और 40 रात क्या करता है, भूखा और प्यासा रहता है, खुदा के हुजूर में रहता है। और उसको 40 दिन तक ना तो भूख लगी ना प्यास लगी। ये लंबा रोजा है, लंबा रोजा है। ये भी मकसद का रोजा है कि वो मूसा को खुदा ने बुलाया और वो खुदा से 10 हुक्म लेने के लिए वहां पे गया पहाड़ पे। और ये 2 बार, अगर मूसा के रोजों को देखे तो 40 2 बार उसने रोजे रखे, यानी कि हिसाब से उसके कितने हो गए, 80 रोजे। पढ़ दे जरा इसको थोड़ा सा। 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने लोहा पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। यहाँ पे क्या लिखा, उसने 10 हकाम को लिखा और फिर वो लेके जमीन पे आया। और जब जमीन पे आता है तो आगे सारी कौम जो है वो बिगड़ चुकी थी। वो तो बुत परस्ती करना शुरू हो गए, उन्होंने बुतों की भी पूजा शुरू कर दी। आज कई बार हम भी यही काम कर रहे होते हैं, रोजे भी रखते हैं और बुतों के सामने जाके सजदे भी करते हैं। हमारे रोजे भी ऐसे ही चलते हैं, हम बुत परस्ती भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं और फिर खुदा से तकाजे करते हैं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब दे। खुदा इस तरह की दुआओं का जवाब नहीं देता। आए एलिया का रोजा देखते हैं। एलिया का रोजा भी 40 दिन का था। पहला सलातीन 19 बाब उसकी 8 है, 391 नंबर पेज है टाइम अभी मेरे पास, जल्दी जल्दी। पहला सलातीन 19 बाब 8 है, 391 नंबर पेज। लंबा तो नहीं हो गया ना, अभी है टाइम मेरा। जब दाऊद ने ये सुना तो उसने योआब और सुरमा के साथ लश्कर को भेजा। तब बनी अम्मोन ने निकलकर शहर के फाटक पर लड़ाई के लिए सफ बांधी, और वो बादशाह जो आए थे सो उनसे अलग मैदान में थे। गलत नहीं हो गया, 19 की 8 है। पहला सलातीन हाँ जी, और कोई निकाल लो, मुकद्दस आप पढ़ दो। उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुवत से 40 दिन और उसने खाया और पिया और उसकी कुवत से 40 दिन तक उसने क्या किया, रोजा रखा। आज हमारी बर्दाश्त कितनी है, कितनी की बर्दाश्त हम करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता, बहुत सारी कलीसियाओं को जानता हूं जो सुबह से शाम तक रोजा रखना शुरू हो गए। सुबह रोजा रखते हैं, शाम को खोलते हैं। हमारी बर्दाश्त ये है, तकाजे बड़े, दावे बड़े, असी बड़ा प्यार करने खुदा, लेकिन हम खुदा के लिए कभी भूखे रहे नहीं रहते। वो तो हम अपने लिए रहते हैं, अपने मतलब के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे भी जानता हूं जो खाते पीते हैं, खा के सुबह रोजा रखा, फिर शाम की तैयारी भी बड़ी लंबी होती है। मैं जाता हूं ऐसे घरों में भी, पकौड़े समोसे सारा कुछ, मैं नहीं खाता है हुई चीजा। सादगी से रोजा रखें, सादगी से रोजा खोलें। यहां पे लिखा उसने खाया पिया और 40 दिन तक फिर उसने क्या किया, रोजा रख लिया। एक और रोजा देखते हैं, आखिरी रोजा है यूना की किताब 3 बाब 5 आयत को पढ़ेंगे जरा। 952 नंबर पेज है। तब ननवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनाती की। रोजा की क्या की, मनाती की, क्योंकि खुदा उनसे नाराज हो गया। खुदा ने कहा मैं नैनवा को क्या करने वाला हूं, तबाह करने वाला हूं, मैं मार दूंगा सारे लोगों को। और जब उनको पता चला, जब वो पैगाम पहुंचा, तो उन्होंने फौरी तौर रोजे की क्या की, मनाती कर दी। आज हम पे जब मुश्किल आती है, हम तो अपने घर वालों को लेकर नहीं रोजा रख सकते।
कहे सारा घराना रोजा रखे। देखिए आपके घर से कैसे मुश्किलें जाती हैं, कैसे परेशानियां जाती हैं, लेकिन आज हम अपने घराने के साथ रोजा रख ही नहीं सकते। एक को कहें दूसरा नहीं रखने नहीं तैयार, मैं आज नहीं रख सकता। हम मुतफिक नहीं होते। यहां पर लिखा है कि रोजे की मनाती की गई और फिर क्या हुआ? और अदना और आला सब ने टाट हुआ। अदना और आला जितने लोग थे, अमीर क्या गरीब क्या, तमाम लोग क्या हो गया, उन्होंने टाट ओढ़ लिया और खुदावन के आगे झुक गए और दुआ करना शुरू की कि खुदा तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी गलतियां खुदा को माफ कर दे। और खुदा ने जवाब दिया। जितने हम रोजे देखेंगे उनमें सब में जवाब नजर आता है। लेकिन आज हम जब रोजा रखते हैं तो हमारे रोजे का, हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं आता? क्यों? क्या आज हम उस तरीके से रोजे रखते नहीं हैं जिस तरीके से हमें बाइबल मुकद्दस में रोजे नजर आते हैं? हम तो रोजा रख के बैठे खुदा यीशु मसीह का, जिसने रोजा रखा ही नहीं, जिसने फाका किया, जिसका एक मकसद था, उसको चेक किया गया कि क्या ये उस काम के लिए अहल है जो ये करने आया है, ये जमीन पे आया है कि लोगों के गुनाह उठा सके और इसको मारा जाएगा, ये सारे काम इसने करने हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े आसानी से उस सारी आजमाइश का मुकाबला किया। हम तो आजमाइश का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। हमने रोजा भी रखा होता है तो फिर भी हम 2 नंबरियां करने से बाज नहीं आते। फिर हम गिला करते हैं कि हमने रोजे भी रखे, हमने दुआ भी की, मैं उस चर्च में भी गया, मैं उस पास्टर के पास भी गया, मैंने बड़ी दुआएं की, लेकिन खुदा मेरी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। कभी अपने आप को देखा है? अपने आप को देखें कि हमारे अंदर कौन सी कमी है जिससे खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। आज जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें। आए इसको पूरा कर दें। यूना को और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, बादशाह को भी पहुंची, और वो अपने तख्त पर उठा और वो अपने तख्त से उठा। उसने क्या किया? और बादशाही लिबास को उतार दिया और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। टाट ओढ़ कर राख पर क्या हो गया? बैठ गया। वो भी टाट पे बैठ जाता है। आज हम क्या करते हैं? आज हमें टाट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आज चेंज है। खुदा यीशु मसीह कहता है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपनी शक्ल को ना बिगाड़। उस वक्त मुश्किलात थी, परेशानियां थी, जितने रोजे हम देखते हैं। लेकिन आज अगर रोजा रखना है तो फिर रोजा ठीक नीयत से रखें और अपनी जिंदगी में मकसद ले लें। जब मकसद का रोजा रखेंगे तो फिर देखें खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। आपके सामने मैं जिंदा मिसाल हूं। खुदा का शुक्र है कि अगर मैं 13 साल से रोजे रख रहा हूं, खुदा के आगे झुकता हूं, तो आज खुदा हमारे चर्च में कितने कितने बड़े मौजूद करता है। आपके सामने है सारा कुछ। इसलिए जरूरत है कि जब रोजा रखते हैं, ये रोजों के एग्जाम चल रहे हैं, आप रोजे रखते हैं, मुझे पता बहुत सारे लोग रोजा रख रहे हैं, लेकिन रोजे में कोई ना कोई अपनी जिंदगी में मकसद रख रहे हैं ताकि खुदा आपकी दुआ का जवाब दे। आए खुदा इस्लाम के विशेषता से हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। कोई भी बेटी बेटा कोई भी दुआ मेरा मैं कर सकता है।